फाउंडेशन और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस टीम मेंबर में मेरे साथ जुड़े हैं अनु भी, और हमारे आज का वेबिनार का टॉपिक है कम कोविड सिम्टम वाले पेशेंट की घर पर केयर करना, जहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट के साथ हमें कैसे मैनेजमेंट बनाकर चलना है और हमें कैसे उनकी केयर करनी है। यह वेबिनार हमने पहले भी किया था, जिनमें 300 से ज्यादा सीनियर सिटीजन ने अटेंड किया था। यह वेबिनार सीनियर सिटीजन की अगेन डिमांड और रिक्वेस्ट पर रखा गया है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पारुल काकर जी, एंड मैम इज कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। और मैं आपको यह बताना भी चाहूंगी कि मैम इज अ रिनाउंड एक्सपर्ट इन इंटरनल मेडिसिन विद अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 17 years. She has been associated with prestigious medical institutions across the country. एंड आफ्टर दैट हमारे साथ जो भी सीनियर सिटीजन जुड़े हैं इस वेबिनार में, वन बाय वन वो अपने मैम से क्वेरीज ले सकते हैं। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, Sonia. Good morning. I welcome you all to this discussion on management of mild COVID-19 patients at home. And before I start my talk, I would like to reiterate that we are in a state of war against the COVID-19 virus, and our only limited means of defense are masks, social distancing, hand hygiene, the vaccines, and the medicines given by your doctor. So please follow COVID-appropriate behavior till we win this war. The next point that I would like to put emphasis on is the dictum given by the Ministry of Health and Family Welfare, which says isolate, test, track, and treat. So अगर आपको लगता है कि आपको कोई symptoms COVID-19 के हुए हैं, जैसे fever, cough, sore throat, weakness, तो please isolate yourself. It will go a long way in breaking the chain of transmission. Get in touch with your doctor, और अगर आप दोनों को लगता है कि टेस्ट होना चाहिए, get yourself tested for COVID RT-PCR. If you test positive for COVID, please track your contacts and tell them also to get tested. And treatment. जैसे आपके डॉक्टर उचित समझे वैसा आप ट्रीटमेंट जरूर फॉलो कीजिए. Going on to my talk now, mild COVID-19. So, is there something called mild COVID-19? जितना न्यूज में हम देख रहे हैं हॉस्पिटल बेड्स की स्कैरसिटी एंड द डेथ का नंबर इतना हाई अनफॉर्चुनेटली, सो लेट मी रीअश्योर यू मोस्ट ऑफ द केसेस आर माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक. So together you and I have a very important task of managing these cases well at home so that they do not turn up in the hospital, becoming moderate and severe cases. So how do we define mild COVID-19? Mild COVID-19 किसे कहेंगे हम? Any patient who tests positive for COVID-19 and has symptoms like fever, cough, sore throat, weakness, without any shortness of breath, which means आपको कोविड के सारे सिम्टम्स हैं, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, लेकिन सांस नहीं फूल रही है तब तक हम उसको माइल्ड केस में गिनेंगे. इन पेशेंट्स को हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं आइसोलेशन के साथ. बट देयर आर सम हाई रिस्क कैटेगरीज इन दीज पेशेंट्स. तो हाई रिस्क पे कौन से लोग हैं? People with age more than 60 years, pregnant females, people with chronic diseases like chronic liver diseases, chronic kidney disease, chronic lung ailments, bronchial asthma, COPD, diabetics जिनका immune status कम है, ये high risk category में है. तो क्या ये high risk category के लोगों को हम घर पे treat नहीं कर सकते? ऐसा नहीं. We can treat them at home with isolation, but your caregiver has to be in constant touch with the doctor. आपका threshold उसमें low होगा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने का. Let me put some slides also on the view. This tells you what is COVID-19. तो सभी को पता है कि COVID-19 SARS-CoV-2 वायरस है, discovered in 2019, hence called COVID-19. And what are the symptoms? Okay. The symptoms, अब हम सिर्फ खांसी बुखार sore throat को COVID-19 माने या समझें ऐसा नहीं है. There are some new symptoms also which have come up, like conjunctivitis, which is redness and watering of the eyes, then discoloration of the toes and the fingers, और कोई rash है, loose motions है, तो भी आप consider कीजिए कि you might be suffering from COVID-19. Okay, how does it spread is very important. The infected person emanates these particles in the cough droplets
or via the breath also. And if you happen to be very close without any mask, आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास हैं, आपने मास्क नहीं लगाया है, तो आप डायरेक्टली उसको इनहेल करते हैं, उससे आप इन्फेक्ट होते हैं. जो उनके कफ ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे पड़े हैं, उनका पास जो टेबल चेयर या उनके कपड़े, उस पे आप टच करते हैं विदाउट एनी ग्लव्स, तो आप, और वही हाथ फिर आप अपने मुंह पे लगाते हैं विदाउट वॉशिंग देम, then you can get infected. So here comes the importance of hand hygiene and mask. Okay, this is the I have already told you mild disease, moderate or severe. Moderate or severe तो hospital discussion का हो गया. Mild disease की हम बात करेंगे. We have already told you yes, the symptoms that should tell you कि you have COVID, and the high risk categories we have discussed. Okay, so now we have a mild COVID-19 case. हमें पता लग गया mild COVID-19 हम किसे कहेंगे, और हम सोच रहे हैं कि हम घर पे ट्रीटमेंट करेंगे. तो व्हाट आर दी प्रीरिक्विजिट्स, हमको पहले से क्या होना चाहिए हमारे पास कि हम सोचें कि हम ये पेशेंट घर पे मैनेज कर सकते हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी शुड हैव अ सेपरेट वेल वेंटिलेटेड रूम एंड अ सेपरेट बाथरूम एंड अ केयर गिवर हु इज देयर 24/7. ये 3 चीज मेरे पास है तो मैं सोचूंगी कि मैं अपना पेशेंट घर पे मैनेज करूंगी. सेपरेट रूम नहीं हो पाता, बाथरूम नहीं हो पाता, या केयर गिवर आपके एल्डरली है, मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज है, या वो खुद बीमार है, तो देन अनफॉर्चुनेटली आप घर, होम आइसोलेशन इज नॉट फॉर यू. तो अब हमने देख लिया माइल्ड कोविड-19 कौन है, हमारे घर पे प्रीरिक्विजिट्स हैं, हम अलग पेशेंट को रख सकते हैं एक कमरे में. सो हाउ डू यू गो अबाउट इट नाउ? देयर आर सेपरेट सेट ऑफ गाइडलाइंस नाउ. दिस इज द किसको आपने करना है आइसोलेट. Or now the separate set of guidelines we were talking about. There are 2 set of guidelines, one for the patient and one for the caregiver. तो patient ने क्या करना है? Patient has the very important task of being masked always. आप बोलोगे मेरा patient तो अलग रूम में है, तो सारे टाइम मास्क क्यों पहनेगा? आपका जितनी बारी भी पेशेंट इनहेल कर रहा है, कफ कर रहा है, तो वो सारी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड वाली, हमने अभी भी डिस्कस किया कि इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स से ये स्प्रेड होता है, तो वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गेट सस्पेंडेड इन द एयर. जितनी बारी मैं वो कमरा खोलूंगी आपके फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, बाकी टू चेकिंग ऑन योर हेल्थ, तो उस सब के टाइम वो जो इन्फेक्टेड हवा है दैट विल गेट पास्ड ऑन टू द हाउसहोल्ड एंड द वेरी आइडिया ऑफ आइसोलेशन इज लॉस्ट. So the patient always has to wear a mask when he is in the room 24 hours, and the mask has to be changed every 8 hours. और इवन अर्लियर, अगर आपको दिख रहा है कि मास्क गीला हो गया है कफ के कारण, स्नीजिंग के कारण, या आपको वो सॉइल्ड दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको पहले चेंज करें. एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने हर 8 घंटे पे अपना मास्क चेंज किया, तो आपने डिस्कार्ड कैसे किया? उसे उठा के डस्टबिन में मैंने फेंक दिया, इज अ बिग नो. उसको पहले आप डिसइंफेक्ट करेंगे विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम योर लोकल केमिस्ट. उसमें आपने 10-15 मिनट उसको रखा. उसके बाद आइडियली you have to keep it in a paper bag for the next 72 hours for it to be discarded as general waste. Guidelines हमारी कहती हैं कि कोविड के मास्क, ग्लव्स जो यूज्ड हैं, they should be discarded by deep burial or burning. Since ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको जनरल वेस्ट में डिस्कार्ड करने के लिए उसको पहले मुझे डिसइंफेक्ट करना विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक, मास्क का हमें समझ में आ गया. मास्क वी हैव टू चेंज एवरी 8 hours. मास्क वी हैव टू डिसइंफेक्ट बिफोर डिस्कार्डिंग. नाउ व्हाट एल्स? द पेशेंट हैज टू कीप अ विंडो ऑफ हिज रूम ओपन. आप एसी भी ऑन करेंगे तो भी विंडो ओपन रहेगा, सो दैट सर्कुलेशन में बाहर जाएगा आपका हवा, वो उस रूम में रहेगा नहीं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पेशेंट हैज टू स्टेप आउट फॉर यूजिंग द वॉशरूम, तो डबल मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, एंड यू आर नॉट टू टच एनी ऑफ द कॉमनली टच सरफेसेस लाइक डोर के हैंडल्स, नॉब्स, वो आपने टच नहीं करना है, so that the risk of passing on the infection is minimized. ठीक. Now about the diet of the patient. डाइट, घर का बना कुछ भी सिंपल खाना आप खा सकते हैं, कुछ स्पेशल की जरूरत नहीं होती है, बट द डाइट हैज टू बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस. सो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट क्या है? अ डाइट रिच इन जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, मतलब फ्रूट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स. मैग्नीशियम में तो डार्क चॉकलेट भी लिखा है, तो कुछ तो पेशेंट को अच्छा भी है.
एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, ये सब आपको जरूर देना है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स. देन यू हैव टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द डाइट. तो वो कैसे करेंगे? वेजिटेरियंस तो सोयाबीन, स्प्राउट्स, पनीर, ये सब आप इंक्लूड करें ज्यादा पेशेंट की डाइट में. नॉन वेजिटेरियंस कैन गो फॉर ग्रिल्ड फिश, चिकन, सूप. इससे आप प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करेंगे डाइट का. प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर रिपेयर, तो प्रोटीन कंटेंट आपकी डाइट का हाई होना चाहिए. नेक्स्ट इज एडिक्वेट हाइड्रेशन सो एज टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स. प्लेन पानी पीजिए, ग्रीन टी लीजिए, कोकोनट वाटर, ये सब कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट हाइड्रेशन. एंड ऑफ कोर्स काढ़ा सबके घर बन रहा है, तुलसी वुलसी और ब्लैक कार्डमम, सिनेमन, क्लव सब डाल के, तो वो भी सब साथ साथ चलेगा. डाइट हो गया. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज मॉनिटरिंग योर हेल्थ. अब आप आइसोलेशन में हैं तो आप अपना ध्यान खुद रखने का आप प्रॉमिस कर रहे हैं, विच मीन्स आप कम से कम दिन में 2 बार अपना बीपी, पल्स, सैचुरेशन, टेम्परेचर ये चेक कर रहे हैं और उसको एक डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, so that you know when you have to consult your doctor. And the caregiver has to be in regular touch. You have to pass on these information to your doctor, right? Okay, so this is about the instructions for the patient. Now what is the set of guidelines for the caregiver? The caregiver also has a very important task, क्योंकि उसने पेशेंट का भी ध्यान रखना है, उसने बाकी सबका भी ध्यान रखना है कि उनको भी नहीं हो जाए. तो सबसे पहले caregiver should be in the age group of 18 to 50 years, क्योंकि उससे ऊपर होते हैं तो उनको खुद इन्फेक्ट होने का रिस्क है. दूसरा, caregiver खुद क्रोनिक किसी इलनेस का मरीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क फिर बढ़ जाता है. ठीक, ओके. तो अब एक केयरगिवर हमने आइडेंटिफाई किया कि हम आप अपने पेशेंट का ध्यान रखेंगे, तो उनको क्या करना है? उनको जब भी पेशेंट के रूम में विजिट करना है तो एक प्रॉपर अटायर पहनना है, जिसमें डबल मास्क है, ग्लव्स है, फेस शील्ड है और एक प्लास्टिक एप्रन है. नाउ द मास्क का डिसइंफेक्शन एंड डिस्कार्ड तो हमने देख लिया कैसे करना है. और उसके बाद जो प्लास्टिक एप्रन है वो भी हर विजिट के बाद डिसइंफेक्ट होगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक, अब बाकी घर का क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन. क्लीनिंग इज वन थिंग, डिसइंफेक्शन इज अ सेपरेट थिंग. तो क्लीन आपने किया, यू कैन यूज डिटर्जेंट आल्सो फॉर क्लीनिंग योर रेगुलर सरफेसेस, फ्लोर्स एंड टेबल्स एक्सेट्रा. और फिर उनको आपने डिसइंफेक्ट भी किया 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से. ये दोनों काम करना है. पेशेंट के रूम से जो आप कपड़े ला रहे हैं, उनके यूज्ड क्लोथ्स एंड उनका बेड लिनन वो सेपरेटली धुलेंगे. वाटर का टेम्परेचर 60 to 90 डिग्री पे रहेगा और वो बाहर धूप में आप उनको सुखाएंगे. ये हुआ. पेशेंट की डाइट का हम डिस्कस कर ही चुके हैं. देन यू हैव टू बी इन रेगुलर टच विद द डॉक्टर, दैट आपको बताना है कि ये दिक्कत हो रही है ऐसे, या कैसे आप मैनेज कर रहे हो. So this becomes the instructions for the caregiver and the patient. Anything that we have left out? नहीं, सारा कवर हो गया. Okay. So now when to end the isolation? अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मेरा पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो मुझे कब तक आइसोलेशन में रखना है? At least 10 days from the onset of symptoms and 3 days of afebrile period. दोनों कंडीशन मीट होना जरूरी है. 10 days from the onset of symptoms and 3 days of afebrile. Afebrile मतलब 3 दिन से उनको बुखार अब नहीं आ रहा है, तो मैं सेफली अपना आइसोलेशन पीरियड एंड कर सकती हूँ, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के, उनको सब बात बता के. दूसरी बात, दूसरा सिनेरियो, सपोज माय पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग या कुछ और दिक्कत शुरू होती है, तो व्हेन डू यू नो कि अब रेड फ्लैग साइंस कहते हैं. रेड फ्लैग साइंस क्या है? अगर सैचुरेशन आपका फॉल कर रहा है, कितना? टू लेस देन 94. आप सैचुरेशन आपने हम पहले बात कर चुके हैं, दिन में 2 बार आप जरूर देखेंगे. तो लेस देन 94 जहां होता है वहां आप अपने डॉक्टर को फोन करेंगे, सैचुरेशन हमारा फॉल हो रहा है, कुछ ट्रीटमेंट बढ़ाना है या उनको हॉस्पिटलाइज कराना है. दैट इज फॉर द डॉक्टर टू डिसाइड. या उनका ओरल इंटेक कम हो रहा है, आप जो इतना कुछ दे रहे हैं, फ्रूट्स भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, हाई प्रोटीन भी चाहिए, ओरल इंटेक ही नहीं हो रहा पेशेंट का, तो ऑब्वियसली आप उन्हें घर पे मैनेज नहीं कर सकते. लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं इसमें ओरल इंटेक आपका सफर कर सकता है. दैट ऑल्सो बिकम्स एन इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन. थर्ड, उनको कुछ परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट है चेस्ट में, कि कुछ तो प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, चेस्ट में पेन बता रहे हैं, तो भी यू हैव टू सीक मेडिकल अटेंशन. या कुछ आप देख रहे हैं कि ड्राउजी हो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो अलर्टनेस का लेवल कम हो रहा है, तो वो भी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप मेडिकल अटेंशन सीख करेंगे. तो दिस इज बोथ द सिनेरियोज. इंप्रूवमेंट हो गया तो आइसोलेशन एंड करेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो मेडिकल अटेंशन लेंगे. एंड
Okay, so now we discuss something about the use of mask, hand hygiene. Hand hygiene, मैंने बोला हाथ धो के हमेशा, hand hygiene बहुत important है. तो कैसे आप करेंगे? 40 seconds at least आप hand wash करेंगे. हैंड वॉश के steps सब जगह available है YouTube पे, अच्छे से आगे से पीछे से. The fingertips all they have to be cleaned thoroughly. बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की हमने बात करी है कि जो भी हम मास्क वगैरह डिस्पोज ऑफ करेंगे वो डिसइंफेक्ट करने के बाद करेंगे. Then this is a general mask up to reduce the spread, greet without physical contact, no handshakes, avoid touching eyes, nose and mouth, and discourage crowd, encourage safety. Then we all know we don't have to go in gatherings these days. Maintain respiratory hygiene, yes, of course, and do not spit in the open. So this is the general guidelines to reduce the transmission of COVID-19. सीक साइकोस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर स्ट्रेस और एंजाइटी. तो इसमें जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो आइसोलेशन का पीरियड है फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली इज ऑब्वियसली नॉट वेरी इजी. फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करना है, बट देयर शुड नॉट बी इमोशनल डिस्टेंसिंग. सो द पेशेंट हैज टू मेक ऑल द वीडियो कॉल्स जो पेंडिंग थे आपके फ्रेंड्स को आप नहीं कर पा रहे थे, वो सब जरूर इस वक्त कीजिए. मेक द यूज ऑफ दिस टाइम एंड बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. Watch all your Netflix ka videos and all, but be in positive state of mind. This period will end and we will win this war. So any questions from the house? I'll be happy to take. Okay, so till we have live questions, we कुछ questions जो usually मेरे patients पूछते होते हैं, उसका हमने एक list बनाया है. तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्टीरॉयड टैबलेट्स जिसे हम घर पे देते हैं या इनसाइड डिस्चार्ज में भी देते हैं, तो उससे शुगर का कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑब्वियसली योर शुगर मेडिसिन्स विल हैव टू बी चेंज्ड, और ये आपके डॉक्टर ही बताएंगे आपको कि आपने कितना उसमें एस्केलेशन देना है, आधा टैबलेट और खाना है या चेंज करना है, नया लेना है. सो आपकी डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि जब आप स्टीरॉयड ले रहे हैं इसके साथ, तो फिर आप बिल्कुल डायबिटिक डाइट को अच्छे से फॉलो करें. शुगर कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट शुड बी लो इन योर डाइट टिल यू आर ऑन स्टीरॉइड्स. फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है कोविड में. यस, इट्स अ वायरल इलनेस. जैसे हम डेंगू में देखते हैं प्लेटलेट काउंट फॉल करता है, टीएलसी फॉल करता है, वो इसमें भी कर सकता है. तो देयर इज नथिंग टू वरी, और अनड्यू वरी नहीं करना है उसके लिए. The next is when should you take the vaccine after recovering from COVID? So this is important क्योंकि बहुत सारे लोगों को first dose of COVID vaccine लग चुका है, and in the meanwhile if they have contracted the disease, so now what happens to the second dose? तो second dose की guidelines है 3 months from the recovery. तो जिस दिन आप negative test हुए या आपके symptoms खत्म हुए, आपने isolation खत्म किया, उसके 3 महीने बाद आप second dose लेंगे. आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज आप जब इलनेस से गुजरे हैं तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ गए हैं, तो यू डू नॉट नीड इट. और उस वक्त अगर आप लेते हैं तो आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए वो भी आता नहीं. तो इसलिए, और मतलब ये किसी यूज का नहीं रहता है फिर सेकेंड डोज, इसलिए हम इसको 3 महीने बाद. ओके. The next is every morning I'm experiencing some sore throat, but after drinking water I feel normal. Is it a COVID symptom? Yes, it could be. Dryness of throat बहुत सारे patients complain करते हैं. Till very end of the illness भी ये symptom थोड़ा nagging सा रह जाता होता है. तो lukewarm water ही हम बोलते हैं anti-allergics, and lukewarm water से इसको किया जाता है treat. Okay, next. Somebody has asked, I'm 17 years old, 1 month back my family and I had COVID. With medication, my fever and other symptoms went away within 5-day course, but after 3 days from then, my fever started to repeat. How should I proceed? For the first 5 to 7 days, ये fever आना जाना लगा रहता है, तो इसको हम उसी COVID का ही वो मानेंगे. इसमें ये नहीं बोलूँगी कि कुछ नया illness आ गया, तो उसको वैसे ही treat करेंगे. If एक इम्पोर्टेंट बात बीच में हमारा रह गया कि अगर ये सिम्टम्स आपके माइल्ड कोविड के सपोज दे परसिस्ट फॉर मोर देन 5 days, तो डेफिनेटली इट बिकम्स एन इंडिकेशन टू सीक मेडिकल अटेंशन. तभी भी आप बात करेंगे अपने डॉक्टर से और नेक्स्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन पे जाएंगे. सेकेंड वीक ऑफ फीवर इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड वीक ऑफ फीवर को हम एज फिजिशियंस ऑल्सो वी टेक इट वेरी इंपॉर्टेंटली. लो डोज स्टीरॉयड का भी उसमें रोल होता है, सीटी स्कैन का भी उसमें रोल होता है. तो सेकेंड वीक अगर फीवर का शुरू होता है तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट बात है. वो घर पे आइसोलेशन और इस सब से मैनेज करने में सही नहीं होता है यूजुअली. ओके.
हम बोले ना Okay, so some questions have come up. Somebody asked, having been fully vaccinated, do I have any risk of contracting, being in contact with an infected patient? See, if you are vaccinated, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इलनेस. वैक्सीन जो आपको मिला है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डिजीज प्रोसेस बहुत सिवियर नहीं होगा. तो डेफिनेटली यस, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, बट वी होप कि आपका इन्फेक्शन बहुत सिवियर नहीं रहेगा. Then what is the life of vaccination? Somebody has asked. उसका भी यही 3 महीने तक का यूजुअली एंटीबॉडीज रहती होती हैं. बाकी इट इज येट टू बी स्टडीड कि कैसे कैसे आगे आता है इसका. When should she take? Another question is again वही second shot of vaccine का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फर्स्ट आपको लगा है और बीच में इलनेस हुआ है तो सेकंड शॉट के लिए आपको 3 महीने के बाद ही कंसिडर करना है. Okay, so this somebody had asked if there's one bathroom, what to do. Ideally, ऐसा ही guidelines में है कि आपके पास separate bathroom होना चाहिए because बहुत देर तक लिंगर करते हैं हवा में इसके कीटाणु, तो इसलिए यही बेस्ट रहेगा. फिर भी अगर एक ही बाथरूम में होम आइसोलेशन में इसे करने का है ऑप्शन, तो आप क्लोज लिड पे फ्लश कीजिए और थोड़ा टाइम गैप रखिए कि जब पेशेंट ने यूज किया है तो उसके कुछ 1-2 घंटे बाद ही कोई और उसमें जाए. ये कर सकते हैं. Okay, another question is how to ensure that the patient has recovered. तो second COVID-19 कराने की कोई जरूरत नहीं होती है. 10 days from the onset of symptoms and the patient has become afebrile, तो आप assume कर लेते हैं कि रिकवरी हो रही है, आपको दिख रही है, तो obviously फिर रिकवरी हो चुकी है. सेकेंड आरटीपीसीआर की इसमें वैल्यू नहीं होती है, कोई तो नेगेटिव डिक्लेयर कराने की कोई जरूरत नहीं होती है. पहले हम 17 डेज मानते होते थे, तो 17 डेज से फिर 14 हुआ, अभी 10 हुआ, बट 14 डेज अगर हम रखें तो वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से. ऑल द पेशेंट्स गेट बिकम नेगेटिव विद इन 10 to 14 to 17 days in some cases. Okay, somebody has said my daughter nose bleeded after recovering from COVID, so what can be the consequences and medication? इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाज शी गिवन एनी एंटीकोएगुलेंट्स. एंटीकोएगुलेंट का भी बहुत रोल रहता है कोविड से रिकवरी और मैनेजमेंट में, बिकॉज हम सब सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं कि क्लॉट्स का बहुत रिस्क आ रहा है कि क्लॉट्स डेवलप, थ्रोम्बोटिक इवेंट हो जाता है कोविड इन्फेक्शन के साथ, तो एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, और उसके साथ डेफिनेटली आपका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है. सो मे बी शी वाज ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, सो दे नीड टू बी टेपर्ड डाउन इन सच केसेस. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर टू बी यूज्ड एट व्हाट ऑक्सीजन लेवल, किसी ने पूछा है. तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का तो जितना रिक्वायरमेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, जब आपके पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं या घर पे ही है तो आपके डॉक्टर ने बोला है उस लेवल पे ही चलेंगे. द सैचुरेशन हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन 90 to 95. उतने पे आपके पेशेंट मेंटेन कर रहे हैं तो उतना काफी है. बाकी का काम डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस और इस सबसे, नेबुलाइजेशन इस सबसे होता है. Does any recovered patient still is at risk of contracting again, and after what gap of time? Risk of contracting infection is not minimized by your antibodies. ये बात हमने बिल्कुल पक्के से समझ लेनी है कि एंटीबॉडी चाहे मुझे इलनेस से आई है, चाहे मुझे वैक्सीन से आई है, ये मुझे इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट नहीं करती हैं. दे कैन ओनली एंश्योर कि मेरा डिजीज प्रोसेस इज माइल्ड टू मॉडरेट.
So yes, you have risk of contracting infection and no gap of time is there in this. COVID किसी को छोड़ता नहीं है. I think this is all. We have done most of the questions. Okay. Parul ma'am, thank you so much for such a knowledgeable and valuable session. आई होप जिन सीनियर सिटीजन ने लास्ट हमारा सेमिनार अटेंड नहीं किया था उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ओके, थैंक यू बिमलेश सर, थैंक यू डॉक्टर पारुल कक्कर जी, एंड थैंक यू ऑल द टीम मेंबर ऑफ मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग. सोनिया, कुछ क्वेश्चंस चैट लिस्ट में है अभी, तो आई वुड लाइक टू टेक देम अप आल्सो. या श्योर, व्हाई नॉट मैम. So if 6 people are living in a 3-bedroom house and one of them contacts COVID, how high is the risk for other members? Somebody has asked, and including less than 18 without vaccine and 2 senior citizens of 75. Risk तो definitely रहेगा ही रहेगा इस केस में, because see, another important point that I would like to discuss here is कि आप फर्स्ट सिम्टम ऑनसेट से 3 दिन पहले ही आप इन्फेक्टिव होते हैं, तो प्रैक्टिकली आपके हाउस होल्ड के मेंबर्स तो एक्सपोज तो हो ही चुके हैं. उसके बाद जो हम आइसोलेशन मेंटेन, इसलिए हम बड़ा इंपॉर्टेंटली बोलते हैं कि जो फर्स्ट सिम्टम आपको आए उससे आप आइसोलेट कर लें, बिकॉज उससे पहले भी आप इन्फेक्टिव थे. तो रिस्क तो रहेगा ही डेफिनेटली 3-bedroom हाउस में वन ऑफ देम कॉन्टैक्ट कोविड. तो okay, then somebody has asked which mask should we wear. N95 wala mask is the best, and the mask should be covering your nose and mouth properly, no leakage from the sides. ये आपने ensure करना. तो यहाँ से बिल्कुल टाइट होना चाहिए, जितना आपके ब्रिज ऑफ द नोज से वो टाइट रहेगा उतना आप किसी को इन्फेक्शन देने में या लेने में आप उतने ही सेफ रहेंगे. So that is to be very important. If you are wearing a surgical mask, then wear a double mask. N95 में डबलिंग की भी जरूरत नहीं है. जो 2 मास्क है जरूरी वाला आ रहा है स्लोगन, वो सर्जिकल मास्क और कॉटन वाले मास्क के लिए आ रहा है, तो उसका ध्यान रखना है जरूर. Okay, I am a diabetes and liver cirrhosis patient. तो सर आपके केस में अगर ऐसा होता है कि आप कोविड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो और आपने पहले भी बोला है कि आई एम पोस्ट कोविड, मैं शुगर लेवल इज 300 to 500. इसमें तो डेफिनेटली आपको हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, ओरल पे रख पाए या आपको इंसुलिन देना सही समझे. मेरे हिसाब से आई वुड प्रिस्क्राइब यू इंसुलिन इतने हाई लेवल ऑफ शुगर पे पोस्ट कोविड स्टेटस में, बिकॉज जितना आपका शुगर अनकंट्रोल रहेगा उतना हम आपका इन्फेक्शन क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए शुगर लेवल डेफिनेटली हैज टू बी कंट्रोल्ड विद इंसुलिन सपोर्ट इन दिस केस, अगर आपका लिवर भी इन्वॉल्व है तो. Then there is mild symptoms decided on basis of RT-PCR report or symptoms. Important question. Mild case जब मैंने बोला तो RT-PCR तो positive case जब मैं बोलूँगी COVID case का मतलब RT-PCR positive है. Rapid antigen RT-PCR, one of the test is positive. और mild, moderate, severe will be decided by the symptoms and the signs, जैसे oxygen saturation. अगर सैचुरेशन 94 के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली वो मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में जाता है, वो माइल्ड केस में नहीं बचता है. तो माइल्ड केस उसी को बोलेंगे जिनके सिम्टम्स माइल्ड है. आरटी-पीसीआर का इससे कोई रिलेशन नहीं है. अनदर थिंग, आरटी-पीसीआर में जो वो सीटी वैल्यू आता है उससे भी बहुत लोग माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर करते हैं. उससे लेट मी रीअश्योर, उससे आपका केस माइल्ड रहेगा, मॉडरेट या सिवियर, वो डिसाइड नहीं होता है. दैट ओनली टेल्स मी कितना वायरल लोड है आपका. अब उस वायरल लोड को मैं कितना देर में किन मेडिसिन से काउंटर कर पाती हूँ, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टाइम एंड योर इम्यूनिटी. सो डू नॉट go on the CT value to decide whether your case is mild, moderate or severe. That will only be decided by your body's response, which will come in the form of symptoms. If the oxygen level is 95 to 97 but comes to 92 or 93 2 to 3 times during the day after 2 months of recovery from COVID, please advise treatment. I would like to say कि 92 93 अगर आ रहा है तो उसमें वरी करने की कोई बात नहीं है. Anything between 90 to 95 post recovery
this is important. 90 to 95 before, when I say mild COVID-19 and I say 90 to 95, then that is no more mild. That becomes moderate to severe. When I say post recovery, then 90 to 95 is good enough level for me. वो मेरा काम चल सकता है, उसमें मैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अपनी दवाइयां लूंगी तो वो रिकवरी वहां से होती चली जाती है. सो ये इंपॉर्टेंट है कि 90 टू 95 वाला लेवल हम पोस्ट रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट इन द डेवलपिंग स्टेज ऑफ डिजीज. If sodium hypochlorite is not available, somebody has asked, then you can take plain bleaching powder, उसका solution बना सकते हैं, वो तो सब जगह मिल जाता है. 5% bleaching powder का solution is as good as 1% sodium hypochlorite का solution. उससे भी आप disinfect कर सकते हैं अपना mask और जो apron, जो आप जो केयर गिवर एप्रन पहन के उस रूम में जाएंगे वो उससे डिसइंफेक्ट हो सकता है. योर सरफेस इज आल्सो कैन बी डिसइंफेक्टेड विद दिस. Okay, there's another question which says my father's age is 67 and has chest pain from 2 weeks. I think that definitely needs further investigation की cause क्या हो सकता है उस chest pain का. थोड़ा mention नहीं किया है कि post COVID है कि pre COVID है. Okay, when to go to the hospital, at what level of oxygen? We have already discussed. दोबारा से एक बार बताते हैं. अगर आप अभी डेवलपिंग स्टेज ऑफ डिजीज में हैं, आपको सिम्टम शुरू हुए हैं और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रीच आउट टू द हॉस्पिटल, रीच आउट टू योर डॉक्टर. अगर आप रिकवरी स्टेज में हैं और आपका 94, 93, 92 बिटवीन 90 to 95 आ रहा है, तो आप ज्यादा वरी करने की बात नहीं है, आप अपनी दवाइयों पे कंटिन्यू कर सकते हैं. Okay, somebody says what precautions to be taken after recovery? Precautions बिल्कुल सेम रहेंगी. आपने सारा कोविड appropriate behavior तो follow करना ही है. The diet has to be rich, as we have discussed, protein intake or fruit intake, hydration for the next 1 month after recovery also. Your body takes time to recover and repair. और बस that's it. अपनी वैक्सीन आप उस accordingly लगवाएंगे जो 3 महीने के बाद का शेड्यूल है. Okay, so somebody has asked why. These are some questions which I would, मतलब time कम है फिर भी questions हम लेना चाहेंगे तो ले रहे हैं, कुछ extra question है. Why we are unable to save the COVID patients even with mild symptoms? So definitely unfortunate है. Mild symptoms के की clarification इसमें होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप उस क्लैरिटी से चलते हैं कि less than 5 days आपके symptoms को persist करते हुए हैं और saturation more than 94 है और आप high risk category में नहीं है, तो डेफिनेटली आपका आउटकम अच्छा होना ही चाहिए. अनेबल टू सेव प्रोबेबली तभी होगा जब मैं इसमें से किसी भी एक चीज में डील लेती हूँ. सैचुरेशन कम जा रही है, नहीं देख रही हूँ, या सिम्टम्स 5 डेज से ऊपर हो रहे हैं और मेडिकल हेल्प नहीं ले रही हूँ, या फिर हाई रिस्क कैटेगरी में हूँ और बार बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रही, तो ही ये सिनेरियो आएगा. आई होप नहीं आए. फॉर हाउ लॉन्ग कैन फीवर परसिस्ट इन अ कोविड पॉजिटिव पर्सन? ओके, ये हम डिस्कस किया है, फिर दोबारा से बताती हूँ. सेकेंड वीक ऑफ फीवर अगर आता है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है. फर्स्ट 5 to 7 डेज फीवर चलता रहता है. बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि डोलो लिया उसके बाद भी फीवर बेसलाइन नहीं टच करता है, तो हम एड ऑन में मेफ्टाल बोलते हैं. नाप्रोसिन इज आल्सो सेफ टू बी टेकन. तो ये फर्स्ट 5 to 7 डेज आई ऑलवेज टेल देम नॉट टू वरी. ये डेफिनेटली है कि फीवर आ रहा है तो आप रडार पे मेरे आ जाते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट ये वाला हो सकता है, बट उसमें वरी उतना करने की बात नहीं होती है. सेकेंड वीक ऑफ फीवर अगर आता है तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट हो जाता है. दैट टेल्स मी कि जो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है वो सेट इन हो चुका है एंड मे बी आई हैव अ साइटोकाइन स्टॉर्म कमिंग अप व्हिच नीड्स टू बी टैकल्ड. तो ये हाउ लॉन्ग. अगर पोस्ट रिकवरी भी, अच्छा इसमें एक ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिकवरी पोस्ट डिस्चार्ज आल्सो लो ग्रेड फीवर समटाइम्स परसिस्ट. तो उसको मान नहीं लेना है कि परसिस्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, अपने डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म जरूर करना है. उसके जो बाकी के टेस्ट होते हैं MCRP, CBC रिपीट करें, देखें कि किस स्टेज पे आपका इलनेस रिकवरी हो भी रही है कि नहीं, या कहीं वापस से तो नहीं आ गया. बिकॉज ये भी आजकल कॉमनली हो रहा है, रिकवर्ड पेशेंट कमिंग बैक इन 20-25 days विद फीवर. सुपर एडेड इन्फेक्शंस का भी रोल इसमें आ रहा है. Then there is medicine required to be kept at home for emergency cure of COVID-19. इमरजेंसी क्योर करके अनफॉर्चुनेटली कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए, बट यस, आपके अगर आप COVID-19 पेशेंट हैं आपके पास और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो नेबुलाइजर्स
ब्यूटिकॉट के नेबुलाइजर्स, लो डोज स्टीरॉयड के नेबुलाइजर्स होते हैं, वो हम जरूर बोलते हैं कि घर पे होने चाहिए. Another point I would like to say, nebulization, मैं बारी बारी नेबुलाइजर बोल रही हूँ बिकॉज हम यूजुअली नेबुलाइजर्स यूज करते होते हैं, बट कोविड के केस में इनहेलर्स आर बेटर देन नेबुलाइजर्स बिकॉज नेबुलाइजेशन से एरोसोल जनरेशन होता है, which might further lead to spread. So if you have a COVID patient at home, please give him inhalers. जो MDI, जो अस्थमा पेशेंट को हम पंप देते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं to be used at home when you are COVID positive and not nebulization. What should I do in case of swelling post-COVID? The swelling needs to be taken care of by your doctor. आगे के टेस्ट होंगे क्यों हो रही है स्वेलिंग. बहुत बारी अनफॉर्चुनेटली स्वेलिंग अगर पैरों में आ रही है तो वो ये भी इंडिकेट कर सकती है कि जो क्लॉट की डिस्कशन हम कर रहे थे, कहीं आपकी पैरों की नसों में वो क्लॉट्स तो नहीं बन रहे हैं. तो डेफिनेटली अगर स्वेलिंग है तो आप डॉक्टर को बताएं, आगे का ट्रीटमेंट और उसकी इन्वेस्टिगेशन डिसाइड होगी वहीं पे. IgE being chronic above 400, managing hypothyroidism by 75 micrograms. Do I have to continue anti-allergic every day for life? Chronic IgE बढ़ा हुआ है तो anti-allergics तो yes are indicated in this scenario. और all the more so अगर आप ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे pollution ज़्यादा है तो obviously आपको लेना ही पड़ेगा anti-allergic, वरना symptoms might manifest. I want to know about black fungus after recovery from COVID. Okay, important. COVID के recovery में we are using steroids. They are indicated. Worldwide use हो रहे हैं steroids और बहुत important है आपके inflammatory cascade को रोकने के लिए. But unfortunately, the steroids also have side effects. So fungal infection is a side effect, a very known side effect of steroid use. और बहुत पहले से ये नया नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ क्योंकि अभी स्टीरॉइड ज्यादा यूज हो रहे हैं तो ज्यादा आप देख पा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन. तो इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? एक तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड हर डॉक्टर अवॉइड कर रहे हैं, तो वो हम भी अवॉइड करते हैं अपने पेशेंट्स में. दूसरी बात है, कुछ भी अगर आपको आउट ऑफ द ब्लू लग रहा है, रिकवरी प्रोसेस में आपको लग रहा है नेजल स्टफीनेस है, आई पेन है, हेडेक है और वाटरिंग फ्रॉम द आई, तो आप डेफिनेटली बताएं ताकि हम आगे के टेस्ट कर सकें फंगल इन्फेक्शन के लिए और उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट दे सकें. Is SGOT and SGPT going up to 66 during COVID infection normal? Yes, SGOT, SGPT liver enzymes होते हैं और viral infections में liver enzymes affect होते हैं, तो SGOT, SGPT बढ़ सकते हैं. 66 बहुत bothering level नहीं है. It will come down on its own after your infection resolves. If multiple family members have COVID, is it useful to isolate? A very good question and बहुत commonly पूछा जाता है कि आप मेरे घर में तो तीनों हम पॉजिटिव हैं तो हम क्या करें. तो फिर आइसोलेशन का कोई रोल बचता नहीं है, फिर आप लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे. आपके जो डेली सप्लाईज है वो आपके नेबर्स या कोई वेल विशर्स आके गेट पे रख दें तो आप उनके जाने के बाद उठा लें. ये करना. हाउ टू कंफर्म दैट द पर्सन इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड? आर टेस्ट कंपलसरी? नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. सेकेंड RT-PCR की कोई वैल्यू नहीं है, कराने की कोई जरूरत नहीं होती है. आप 10 days to 14 days from the symptom onset and the patient does not have any fever for last 3 days is more than sufficient to say कि आपका patient recover. So the second test is not at all compulsory. Okay, I have some more questions which say, please discuss about mild fever post-COVID recovery. वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. पोस्ट कोविड रिकवरी माइल्ड फीवर किसी किसी केस में परसिस्ट करता है, तो उसमें सिर्फ इतना करना है आपने कि अपने डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म करना, फिर वो आगे के टेस्ट आपको बताएं और अगर उनको जरूरी लगता है तो लो डोज स्टेरॉइड दें या आपको बोलो कि SOS बेस पे पैरासिटामोल ले लीजिए. दैट इज ऑल दैट नीड्स टू बी डन. I was tested positive for COVID on 17th of April and again having fever since 17th of May. Okay. CRP and ESR increased according to latest report. Please advise. ये treatment यहाँ नहीं बता पाऊंगी, ये forum treatment के लिए नहीं है. But yes, आप वही हम बात कर चुके हैं कि COVID infection दोबारा जरूर हो सकता है, mild रहे ये हम expect कर सकते हैं. A gap of 3 months for vaccination is the same for Covaxin and Covishield. Yes, because you have antibodies which will be there for 3 months. So gap is same. Thank you so much. Thank you, Sonia. थैंक यू मैम, आपने हमारे सीनियर सिटीजन के सारे सवालों का जवाब दिया. थैंक यू फॉर सच अ नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल सेशन.
आई थिंक जिन सीनियर सिटीजन ने हमारा लास्ट सेमिनार अटेंड नहीं किया था, उनके भी सारे डाउट्स क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू बिमलेश सर, थैंक यू डॉक्टर पारुल कक्कर जी, and thank you all the team member of Max Hospital Shalimar Bagh. Thank you so much, ma'am.